इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे ग्रुप फिफ्थ के कैटायंस के एनालिसिस के बारे में। ग्रुप फिफ्थ में कौन कौन से कैटायन हैं, उसको किस प्रकार से हम एनालाइज करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, इसके बारे में आज हमें बात करना है। और जैसा कि हमको मालूम है, हमने पहले ही ग्रुप फोर्थ तक के विभिन्न कैटायंस को हमने पढ़ रखा है और किस प्रकार से उसको एनालिसिस करते हैं, कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, फ्लेम टेस्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं और क्लासिकल वेट एनालिसिस, जिस प्रकार से हम अलग अलग समूहों में अलग अलग ग्रुप रिएजेंट्स के साथ विभिन्न कैटायंस को हम सेपरेट करते हैं, वो भी हमने वेट एनालिसिस के माध्यम से ग्रुप फोर्थ तक पढ़ रखा है। अब अगर आपको ग्रुप फोर्थ तक कोई भी कैटायन नहीं प्राप्त हुआ है, तो नेचुरली हमें आगे ग्रुप फिफ्थ के बारे में बात करना है और ग्रुप फिफ्थ की एनालिसिस में कौन कौन से कैटायन हैं, उनको हम किस प्रकार से डिटेक्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे, इसके बारे में विस्तृत विवरण मैं आपको आज प्रस्तुत कर रहा हूं। एंड वी नो दैट ग्रुप फिफ्थ cations are alkaline earth metal cations, and these are naturally alkaline earth metal cations, that is calcium, barium, and strontium. The cations of the group fourth is absent, only then we have to proceed to group fifth cations. Group fifth cations are, all these are di-positive cations, barium 2 positive, strontium 2 positive, and calcium डाई पॉजिटिव कैटायंस आर देयर, और इनको हम प्रिसिपिटेट करते हैं एक खास ग्रुप रिएजेंट के द्वारा, एंड दैट इज प्रिसिपिटेटेड एज कार्बोनेट. ऑफ कोर्स द मीडियम इज डेफिनेटली alkaline. Group reagent is ammonium carbonate in presence of ammonium chloride and ammonium hydroxide. This ammonium chloride and ammonium hydroxide act as a buffering reagent. They maintain the pH value of the solution for precipitation of these alkaline earth metals as carbonate. So actually, it is NH42CO3, that is ammonium carbonate, which is the group reagent. And as I have given here, purpose of using ammonium chloride provides excess ammonium ions, which suppresses the dissociation of ammonium carbonate via what is known as common ion effect. We have already learned about common ion effect, and because of this, it helps in precipitation of group fifth cations, leaving apart the cation of group 6, and that is magnesium dipositive. तो मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन प्रिसिपिटेट नहीं हो पाता, केवल कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम आर प्रिसिपिटेटेड. अब अगर देखा जाए तो हम किस प्रकार से इसको एनालाइज करेंगे, ये पूरी प्रक्रिया इस यहाँ पर दी गई है. ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे, उसमें सॉलिड एमोनियम क्लोराइड मिलाएंगे, excess of ammonium hydroxide solution will also be added, and since we need more ammonium ion, normally we use soluble solid ammonium chloride and shake the contents. We get a white precipitate that shows that group 5 cations should be there, and then these precipitate, this white precipitate has to be filtered out and dilute acetic acid containing a little water, some water, dilute acetic acid. When you add this white precipitate will dissolve, and sometimes there is a need to boil it. So naturally, we have to boil it, the precipitate dissolves, and now you get a clear solution of these carbonates which has been dissolved in acetic acid. And now we have to proceed to confirm it and then ensure that a particular reagent, a particular cation is there. So let us proceed with acetic acid. So the acetic acid solution
is divided into 3 parts because each test for barium, for strontium and calcium are conducted separately in this solution in acetic acid. कोई भी कैटायन हो उसको एसिटिक एसिड में हमने प्रिसिपिटेट को डिसॉल्व कर लिया, उसके 3 हिस्से किए उस सॉल्यूशन के। पहले हिस्से में हम बेरियम का टेस्ट करेंगे, दूसरे हिस्से में स्ट्रॉन्शियम का और तब कैल्शियम का। ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर है जिसमें कि हमें इसे टेस्ट करना है। टेस्टिंग मस्ट फॉलो द स्पेसिफिक ऑर्डर, बेरियम फर्स्ट, देन स्ट्रॉन्शियम एंड देन कैल्शियम। ये क्यों होता है? इसका कारण है कि बेरियम कैन इंटरफियर विद स्ट्रॉन्शियम एंड कैल्शियम टेस्ट। अगर हम बेरियम को पहले नहीं कंफर्म करेंगे तो कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम का टेस्ट होने पर भी प्रिसिपिटेट आएगा, एंड देयरफॉर we have to just find out that barium is present there, Ba dye positive is present then. Only then we shall take up test for strontium and calcium dye positive ions. Barium acetic acid solubility. Barium chromate is the only chromate in this group that is insoluble in acetic acid. तो सेलेक्टिव सेपरेशन हम करते हैं। अब ये क्रोमेट कैसे आया हम आगे बात करेंगे कि इसको हम कंफर्म करते हैं एज बेरियम क्रोमेट। और इसके बाद हमको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा साथ ही साथ कि किस प्रकार से एसिटिक एसिड में ये कार्बोनेट डिसॉल्व होते हैं और उनके रिएक्शंस को भी हमें समझना होगा। बेरियम कार्बोनेट डिसॉल्व्स इन एसिटिक एसिड टू फॉर्म बेरियम एसीटेट। Of course, this ionic equation is represented here, and of course H2O and water, carbon dioxide is formed. This is in the gaseous state. So बेरियम एसीटेट बन जाएगा, स्ट्रॉन्शियम एसीटेट बन सकता है, कैल्शियम एसीटेट बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ और द टाइप ऑफ द आयन प्रेजेंट। और इसके बाद फिर हम क्रोमेट आयन मिला करके या सल्फेट आयन या ऑक्सलेट आयन मिला करके इसको हम कंफर्म भी करेंगे। और जब हम कंफर्म करते हैं तो अगर बेरियम है तो यू गेट ए येलो प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम क्रोमेट इन द सॉलिड स्टेट। स्ट्रॉन्शियम, when sulfate ions are mixed, means you may add a little amount of sulfuric acid, you get strontium sulfate as a white precipitate. Similarly, get oxalate, if you add a little amount of oxalic acid, you get calcium oxalate as a white precipitate. तो ये तो हुआ कंफर्मेटरी टेस्ट जिसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं, लेकिन अभिक्रियाएं या रिएक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं, इनको हमें विशेष प्रकार से समझना होगा। और हम तो आपको राय यही देंगे कि जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करें तो उसके अंडरलाइंग रिएक्शंस, उसके पीछे जो अभिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस हैं या प्रोसेसेस हैं, उसके बारे में भी हम साथ ही साथ समझते रहें। अब देखिए आगे हमें बात करना है समरी ऑफ टेबल ऑफ सेपरेशन ऑफ कैटायंस एंड द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। मैंने बताया पोटेशियम क्रोमेट बेरियम के लिए, स्ट्रॉन्शियम के लिए एमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम के लिए एमोनियम ऑक्सलेट ये यूज होता है। एंड व्हेन यू यूज दिस सॉल्यूशंस यू गेट व्हाइट स्ट्रॉन्शियम सल्फेट क्रिम्सन। फ्लेम टेस्ट की जरूरत तो बाद में पड़ सकती है जब हम कंफर्म कर लेंगे। एंड देन यू गेट कैल्शियम ऑक्सलेट। द रिएक्शन इज that when you add a chromate and potassium chromate barium के साथ मिलाएंगे you get barium chromate, which is yellow precipitate. Similarly, strontium के लिए sulfate ion मिलाएंगे, you may add ammonium sulfate because and then you get strontium sulfate as a white precipitate. Similarly, calcium ions जो कि कैल्शियम एसीटेट के रूप में है, उसमें अगर एमोनियम ऑक्सलेट मिला दें you get calcium oxalate solid. Solid means they are precipitated. They are separated from the medium, liquid medium, and you get as a precipitate. और यहाँ पर हमने आपको फ्लेम टेस्ट के बारे में एक हिंट दिया है। अब कंफर्म हो जाने के बाद यही सोल्यूशन जो एसिटिक एसिड में हमने बनाया है उसको फ्लेम टेस्ट के लिए भी हम कंफर्म करेंगे। इस फ्लेम टेस्ट के बारे में
हम अपने पिछले वीडियो में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो अब आप देखिए आगे किस प्रकार से हम systematic separation scheme, the clear acetic acid solution is then treated one after the other sequentially to separate each cation. बेरियम के लिए हम पोटेशियम क्रोमेट मिला दें, you get a barium chromate precipitate which is insoluble in acetic acid. रिएक्शंस तो हम पहले ही समझ चुके हैं और हम लोगों ने उसको बड़ी आसानी से बना भी सकते हैं हम लोग। और बेरियम, जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले बेरियम का ही टेस्ट होगा, क्योंकि बाद में अगर हम बेरियम को कंफर्म और सेट टेस्ट नहीं करेंगे तो कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम के टेस्ट में वो, यदि वो न भी हो तो भी ये इंटरफियर करता है, इसलिए बेरियम का टेस्ट हम पहले करेंगे। अब इसके बाद हम टेस्ट करेंगे स्ट्रॉन्शियम का। स्ट्रॉन्शियम को टेस्ट करने के लिए दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट विद एमोनियम सल्फेट मिलाएंगे, ammonium sulfate in presence of acetic acid. So you get a white precipitate of strontium sulfate that confirms strontium SR डाइपॉजिटिव। और ठीक इसी प्रकार से कैल्शियम डाइपॉजिटिव का टेस्ट भी हम टेस्ट करते हैं, लेकिन हम क्या यूज करते हैं इस समय? प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इज एमोनियम ऑक्सलेट, NH4 2C2O4 इज एमोनियम ऑक्सलेट, और ये भी एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। और जब हमने ये कंफर्म कर लिया तब उसके बाद ये आवश्यकता पड़ती है और भी अधिक पॉजिटिव टेस्ट करने के लिए, एंड दैट इज फ्लेम टेस्ट। और अगर कैल्शियम है तो डिक्रेट फ्लेम बनेगी। एंड देन फाइनली हियर इज द स्पेसिफिक केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ these precipitation reactions, and the reactions I have already given you, it is represented here. तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से ग्रुप 5 के कैटायंस को विभिन्न विधियों के द्वारा डिटेक्ट भी कर सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं। और ग्रुप 5 के कैटायंस को कंफर्म करने के लिए एक और अच्छी प्रक्रिया है जो कि हमें मालूम है, एंड दैट इज फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट भी वही एसिटिक एसिड सॉल्यूशन से ही हम करते हैं। और अब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया? हम लोगों ने ग्रुप 5 के प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ लिया। ग्रुप 1 से ग्रुप 5 तक प्रेसिपिटेशन के बारे में we have already learned about zero group, the flame test, and now the only cation which is left over, we shall take up a little later, insert another video about the detection and confirmation of Mg dipositive, that is magnesium ion. So thank you very much for your patience. I'll advise you to go through the entire video from the beginning till end of this video, and I'll suggest you to go and study the earlier videos also via our playlist. Okay, thank you very much. Please don't forget to hit the subscribe button. Thank you very much again.